Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently uploaded a comprehensive video on the topic of triangles and maths geometry for Class 9 students studying under the CBSE and Maharashtra State Board. This video aims to provide knowledge and explanations to help students understand the fundamental concepts of triangles. Triangle, a polygon with 3 sides and 3 angles, is an essential topic in geometry. The video emphasizes various aspects of triangles such as types, properties, and formulas. It covers topics like types of triangles based on sides and angles, Pythagoras theorem, congruency, and inequalities in triangles. Through this video, Ignited Minds Tutorials has carefully explained these concepts using visual aids and step-by-step examples. The goal is to make learning interactive, engaging, and easy to comprehend. Students will develop a strong foundation in triangles, enabling them to solve complex problems. The video encourages students to actively participate by sharing doubts and questions, fostering a healthy learning environment. Additionally, Ignited Minds Tutorials also provides downloadable study materials and practice questions to supplement the video lessons. In conclusion, Ignited Minds Tutorials educational video on triangles and maths geometry for Class 9 is a valuable resource. For students studying under the CBSE and Maharashtra State Board, IT equips students with essential knowledge and helps them build a strong mathematical foundation. Explore the video and unlock the world of triangles and maths. चलो भाई साहब, ये वाला सवाल करना है। ये वाला हुआ था क्या कल? नहीं, ये नहीं हुआ। कौन बोला हो गया? दिखा दिखा ना, दिखा किधर हो गया? दिखा हो गया रहेगा, दिखा ना। मुंह खोलने से पहले भाई साहब सोचते हो क्या कुछ? Okay, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक isosceles triangle है, isosceles triangle है. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and C, the bisectors of angle B and C तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. जॉइन, ठीक है, आपने भाई साहब जॉइन ए टू ओ, जॉइन ए टू ओ, ठीक है. शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. आपको भाई साहब यहाँ पे बाइसेक्टर्स ऑफ, ये आपका बाइसेक्टर हो गए, These are basically the bisectors, ठीक है. एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC जहाँ पे आपका AB और AC बराबर है, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. Join A to O, आपने AO को join किया है. Show that OB is equal to OC. OB is equal to OC. आपको ये find out करना है, ठीक है. So to prove that आपका OB और OC बराबर है, मतलब ये वाला OB और OC बराबर है, and AO bisects angle A. चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन. हो गया डन? हाँ, यहां पे भाई साहब आपको OB और OC को प्रूव करना है, दे आर इक्वल. हाउ विल वी डू दिस? जल्दी 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 बताइए. देखो आपका AB और AC बराबर दिया हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं? इन ट्राइंगल्स, ठीक है भाई साहब. देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC आपका क्या है भाई साहब? AB इज इक्वल टू AC, ठीक है. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं?
व्हाट कैन बी से? ओए मात्रे क्या होगा? अरे बोलो, कल ही तो पढ़ा था। हाँ सर, या वो दी या If the two sides of triangles are congruent, then the angles opposite to them are also equal. ठीक है, if the two sides of a triangle are congruent then the angles opposite to them are also equal. ये सीबीएसई वाले इतना बड़ा लिखेंगे, आप लोग भाई साहब सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका क्या है, गिवन दिया हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है भाई साहब, स्टेट बोर्ड वाले सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख के छोड़ देंगे, सीबीएसई वाले क्या लिखेंगे, सीबीएसई वाले एंगल, हाँ ओके, इफ टू साइड्स, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पे देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, हाफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बी। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा बोलो, ए बी, अभी लेट से आपका ये सी, अरे 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 भाई साहब बी और सी, तो लेट से आपका बी डी है और ये बी ई है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ट्र, तो ये आपका भाई साहब बी ई इसको बाइसेक्ट कर रहा है और सी डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और दोनों बाइसेक्टर्स कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बी। भाई ए बी सी और ए सी बी अगर बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। अभी ए बी सी का हाफ क्या हो जाएगा बोलो, ए बी ई लिख सकते हैं। ठीक है, सो ए बी सी का हाफ हो जाएगा भाई साहब एंगल ए बी ई, और ए सी बी का हाफ, भाई चौधरी, हाँ ए सी डी, ओके चलिए भाई साहब ए सी डी, क्लियर है? अभी देखो ये ए बी ई को अपन ए बी ई पूरे ई तक ना जाकर क्या अपन ओ तक जा सकते हैं, ए बी ई लिखें या ए बी ओ लिखें, क्या एक ही बात होगी, इट विल बी द सेम। ठीक है, तो अपन ए एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ए सी डी, पूरे डी तक ना जाकर ए सी ओ चलेगा भाई साहब। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सो दिस विल बी आवर ए सी ओ, यहाँ पे हमने लिख दिया भाई साहब वन, लेट्स से। ठीक है, ओके, तो अपन भाई साहब अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब, ए बी ओ एंड ए सी ओ, ए बी ओ और ए सी ओ में भाई साहब क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो फटाफट से, राइट, जल्दी जल्दी, ए बी ओ और ए सी ओ, फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। अरे देखो भाई साहब जानवी, ए बी और ए सी ओ में जल्दी जल्दी, आप बताइए, हेलो आप, अरे भाई साहब क्या ये गर्ल्स गैंग भाई साहब, मैथ्स आज आता है कि पंगा ही चल रहा है आपका मैथ्स के साथ, हाँ चौधरी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये कहां से हो गया भाई साहब, ये तो प्रूव करना है, बट ये प्रूव करना है, ओ बी और ओ सी प्रूव करना है। पटेल क्या है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन साइड बोलना भाई साहब। ठीक है, तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन साइड। ठीक है, हाँ जी आप बताइए, आगे, अभी तो किसी को मारने होने जा रहे थे आप, नहीं तो बड़ी आवाज निकल रही थी भाई साहब, चलो चलो जल्दी जल्दी भाई, देखो आप बताइए और क्या क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, जल्दी भाई साहब जल्दी जल्दी फटाफट। श्रेया दूसरा क्या होगा, अरे अभी तो किया तुम्हारे सामने, देखो ना भाई साहब, ए बी ओ और ए सी ओ, इसको प्रूव किया ना बराबर, ये लिख सकते हैं ना, तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू भाई साहब एंगल ए सी ओ, ए बी ओ और ए सी ओ भाई साहब बराबर। यहां पे अपन देखो फ्रॉम वन लिख देना, स्टेट बोर्ड वाले, सीबीएसई वाले लिखना भाई साहब ऑलरेडी प्रूव्ड, बस
थोड़ा बहुत फर्क है और कुछ नहीं, ऑलरेडी प्रूव्ड ऐसे लिखेंगे। रुको ना, रुको, हम आएंगे भाई साहब, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, और क्या हो जाएगा? हाँ, आगे क्या, 3 चीजें तो आपको कम से कम प्रूव करनी पड़ेंगी ना कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। हाँ, ओ ई, अरे भाई साहब दिया ही तो हुआ यहाँ पे, ए बी और ए सी बराबर है ना, दिया तो है, ठीक है। सो दिस विल बी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भाई साहब आपको गिवन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? ए बी और ए सी बराबर, ये भाई साहब साइड बराबर और ये एंगल बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? साइड एंगल साइड, नो नो, साइड साइड एंगल कि एंगल 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 साइड, कौन से दो एंगल? एस एस ए कोई थ्योरम नहीं है, क्या क्या थ्योरम्स हैं? एक आपका हो गया एस एस एस, तीनों साइड, दूसरा क्या है? 2 साइड्स और बीच वाला एंगल, और ए एस ए, ठीक है, और आर एच एस, और एस ए है साइड एंगल 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 साइड, चलिए एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो यहां पे देखो आपके एक एंगल है और ये 2 साइड है, एक एंगल और ये 2 साइड है, तो ये तो नहीं जम रहा है भाई साहब, ठीक है। एंगल आपका साइड के बीच में नहीं है, एंगल आपका भाई साहब साइड के बीच नहीं है, ठीक है। द बाइसेक्टर्स जॉइन ए टू ओ, अब बताओ भाई साहब कैसे करोगे? बोला हो, बोला जल्दी से फटाफट। ये साइड है, ये साइड है, और आपका भाई साहब क्या है? ये साइड है कॉमन, लेकिन ये वाला एंगल जो कोने में पड़ा हुआ है, तो आपका भाई साहब ये वाला नहीं हो सकता, एस ए एस ये नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है बताओ? हाँ, तो इसका मतलब हमको कुछ और इसमें करना पड़ेगा, है ना। अभी इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, देखो इन ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है। हम यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, देखो हाफ ऑफ, अपने यहाँ पे देखो इसको ये किया हुआ है ना, ठीक है। सो हाफ ऑफ ए बी सी और हाफ ऑफ ए सी भी है, हाफ ऑफ ए बी सी को ओ बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ इससे देखो ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ओ बी सी, दिस विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी ओ सी बी के बराबर है, ओ बी सी और ओ सी बी बराबर हो गया, तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना भाई साहब, ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों साइड्स आपके बराबर हो गए, ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आते हैं भाई साहब इसमें, ठीक है। तो आपका देखो ए बी और ए सी बराबर, ठीक है, इसको छोड़ दो, ए ओ और ए ओ बराबर, और क्या? ओ बी और ओ सी बराबर, ठीक है, ऑलरेडी प्रूफ। तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। रीजन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? एस एस एस। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। ए ओ बाइसेक्स एंगल ए, अभी भाई साहब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एंगल बी ए ओ विल बी इक्वल टू एंगल सी ए ओ। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर ओ ए बाइसेक्स एंगल ए, ओ ए बाइसेक्स एंगल ए, ठीक है। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। तो देख लो यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दोनों साइड्स आपके बराबर है। देखो ये दोनों साइड्स आपको बराबर दिया हुआ है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल, और ये भाई साहब आपका ज्वाइन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? हाँ वही क्वेश्चन है भाई साहब, कौन बोला कि दूसरा क्वेश्चन है? मैंने तो बोला नहीं,
ठीक है, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, तो आप यहाँ पे पहले ये प्रूव कर लो कि ओबीसी और ओसी भी बराबर है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है ना कि ओबी और ओसी बराबर है, ओबी और ओसी बराबर है। तो ओबी और ओसी को बराबर प्रूव करने के लिए आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब देखो ये एबी और एसी बराबर है, अगर एबी और एसी बराबर है तो एंगल एबीसी और एंगल एसी भी बराबर है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको किसको सीबीएसई को ये फॉर्मूला लिखना, ये थियरम लिखना है, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये लिख सकते हैं इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये पूरा थियरम ना लिखेंगे अगर आप, तो आप यहाँ पे सीधा रीजन क्या दे सकते हैं भाई साहब, एंगल्स देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इतना लिख दो। ठीक है, और स्ट्रेट बोर्ड तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख ही सकते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके आधे भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है, एबीसी और एसी भी बराबर है, तो हाफ ऑफ एबीसी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी भी, मतलब ये वाला और ये वाला भी आप सब बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर हो गया आपके, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। इसमें आप क्या लिखोगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो ओबी और ओसी आपका बराबर हो गया भाई साहब, ये आपका बराबर हो गया और ये आपका बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो गए भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट। तो भाई एस ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली पहले तो अपने ओबी और ओसी तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हो गए तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पेपर? अच्छा जी, बहुत कुछ क्लियर है। ओके ओके ओके, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे ये, ठीक है, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ओबीसी। सो ओबी और ओसी हो गया। देखो यहाँ पे रीजन क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आप लोग सीधा आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकते हैं। ठीक है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और यहाँ पे क्या रीजन दिया है, देखो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फलाना फलाना नहीं। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल दूसरी बार है। ठीक है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब फटाफट करना है, क्विक क्विकर क्विकर, जल्दी जल्दी फटाक से। डन डन डन। In triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC। परपेंडिकुलर है और भाई साहब बाइसेक्टर है। ठीक है, शो दैट ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। चलिए फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, डन डन डन। देखो इन ट्राइंगल्स, कौन सा भाई साहब, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, एंड ए सी डी एंड ए सी डी, बताओ भाई साहब क्या क्या बराबर होगा, बोलिए बोलिए। वेट वेट, आप बताइए बताइए जल्दी, इजी तो है, दिख तो रहा है यहाँ पे। क्या सब लोग पहले कॉमन साइड ही लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए डी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ पे भी ए डी है, देखो ये भी ए डी है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, देयर इज कॉमन साइड। ठीक है, ओए मात्रे क्या भाई, दूसरा फटाफट जल्दी आज ही। एक शो भाई, देखो मुंडी नीचे करके बैठेगा ताकि उसको देखे ना। हाँ
आकाश, हाँ ए ओ बी, ए ओ कहाँ से, हाँ क्या, इन दोनों ट्राइंगल्स में और क्या क्या इक्वल है चौधरी? बी डी इज इक्वल टू सी डी, ओके, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये आपका गिवन है। और बोलो भाई साहब, और बोलो भाई, जल्दी जल्दी भाई, देखो अब बताइए। नहीं, ए बी इज इक्वल टू ए सी तो प्रूव करना है, नहीं नहीं भाई साहब चौधरी, ए डी सी, ठीक है, ए डी बी, ए डी सी के बराबर होगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू भाई साहब एंगल ए डी सी। क्यों भाई साहब? बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्लियर है? ज्योमेट्री कुछ नहीं है भाई साहब, हिसाब किताब है और कुछ नहीं, चीजें दी हुई हैं, इसका सिर्फ हिसाब किताब करना है, ठीक है? चौधरी साहब, मारवाड़ी लोग बिजनेस में आगे क्यों होते हैं? मारवाड़ी को बिजनेस कम्युनिटी में मतलब एक मतलब हम बोलते हैं कि दे आर वेरी अहेड इन द बिजनेस कम्युनिटी। व्हाट इज इट्स सो स्पेशल दैट मेक्स देम गो अहेड ऑफ एवरीवन एल्स? नहीं, बचपन से करते नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कैलकुलेशन, और क्या? कैलकुलेशन नहीं बोलेंगे हम। देखो, अगर आप कभी कॉमर्स लेंगे ना, तो कॉमर्स में एक टॉपिक आता है जिसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीके अकाउंटेंसी इसको बोलते हैं। और उसमें पहला टर्म आपका आता है बही खाता। बही खाता मतलब होता है भाई साहब, ये हर चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं भाई साहब, कितना आया कितना गया। दूसरे कम्युनिटीज इतना हिसाब किताब नहीं करते हैं, तो शायद बिजनेस में इनके सक्सेसफुल होने का ये एक रीज़न है भाई साहब, रोज बैठ के ये हिसाब किताब करेंगे, करेंगे ही करेंगे। सो दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट दिस अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है? आपका ज्योमेट्री भी एक अकाउंटिंग प्रोसेस ही है, सिर्फ हिसाब किताब करना है आपको, सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे देखो, एक होता है आपका, आप कस्टमर सर्विस आपका बहुत अच्छा है तो लोग आपके दुकान पे आ रहे हैं, या हो सकता है कि भाई साहब आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छा है, ठीक है? लेकिन मारवाड़ी लोग जनरली खुद से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, इधर से आ रहे हैं इसको बेच रहे हैं, ठीक है? सो प्रोडक्ट पे उनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग जैसे आपका सिर्फ हिसाब किताब है, और उस एक हिसाब किताब को ठीक से करने के लिए एक कम्युनिटी हमेशा आगे है, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कस्टमर सर्विस बाद में आता है भाई साहब, आपका प्रोडक्ट डिजाइनिंग ये सब बाद में आता है, एडवर्टाइजिंग बाद में आता है, पब्लिसिटी बाद में आती है, लेकिन आपका ये जो फैक्टर है अकाउंटिंग, रेगुलर अकाउंटिंग, ये इनको आगे रख रहा है बिजनेस में। हर बंदे का भाई साहब, हर मारवाड़ी का हिसाब किताब एकदम सही रहेगा, उनका कभी मतलब हिसाब किताब में एक पैसे का हेरा फेरी नहीं होगा इधर उधर। दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट इट। आप दूसरे कम्युनिटीज में देखेंगे, कभी महीने में बैठ गए एक बार दो बार, ठीक है, या कभी 15 दिन में 20, ये लोग रोज करते हैं, रोज, ठीक है? दैट इज वन थिंग दैट इज देयर, ठीक है? इसको बही खाता बोलते हैं। और अकाउंटिंग में जब आप पढ़ते हो ना, तो पहला आपका टर्म ही आता है, ये इंडियन टर्म है बही खाता, और वो वहां पे भी यही टर्म यूज होता है पहले, ये यहां से ट्रेडिशन चला आ रहा है। खैर, ये ज्योमेट्री भी आप देखोगे एक टाइप का अकाउंटिंग ही है, यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, आपको सिर्फ हिसाब किताब लगाना है भाई साहब, कौन किसके बराबर, ठीक है? ये इसके बराबर है भाई साहब, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल इसके बराबर है, और ये आपका कॉमन साइड है। हिसाब किताब लगाओ भाई, दिख तो रहा है आपको, ठीक है? हिसाब किताब लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आपको सिर्फ कितना आवन कितना जावन ये देखना है, ठीक है? तो ये आपका भाई साहब हो गया, दी हुई है चीजें, सिर्फ आंखें खोलकर भाई साहब उसको ऑब्जर्व करना है और लिखना है। आप देखिए क्या ही डिफिकल्ट है इसमें, क्या डिफिकल्ट है इसको। आपको दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल है, बस इतना ही तो। कौन सा हाई फंडू कैलकुलेशन है यहाँ पे बताइए? आपके अगर ऑब्जर्विंग पावर बिल्कुल ही वीक है या जीरो है, क्या आपको भाई साहब हरे की जगह पीला दिखता रहेगा, या भाई साहब ग्रीन की जगह काला दिखता रहेगा, ऐसा कुछ ऑब्जर्विंग है आपका तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ही दिमाग दौड़ाना है भाई साहब, दो ट्राइंगल्स हैं, इनमें क्या क्या इक्वल आपको दिख रहा है, क्या क्या बराबर आपको दिख रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं ना कि भाई साहब ये पिक्चर भी और ये पिक्चर में क्या फॉल्ट है देखो, वो तो आप बड़ा तरक से निकाल लेंगे भाई साहब, अच्छा इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पे भी तो वही चीज़ है यहाँ यार, हिसाब ही तो लगा रहे हो आप। तो आपका ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या बराबर है, ये दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब इससे ईजी और क्या हो सकता है बोलो। देखो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, और ये जो कॉमन साइड है ये दोनों में गिना जाएगा, तो ये भी बराबर हो गया। हिसाब किताब ही तो लगा रहे हो तुम दो ट्राइंगल्स का। इज इट एनीथिंग दैट यू आर डूइंग स्पेशल?
थिंक अबाउट इट, ठीक है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल, सिर्फ हिसाब किताब लगा रहे हो आप, ठीक है। तो ज्योमेट्री वही है भाई साहब, एक बार आपने ड्रॉ कर लिया फिगर, आप अगर दो ट्राइंगल्स को देख रहे हो, इसमें क्या क्या बराबर है उतना ही हिसाब लगाना है आपको, दी हुई है चीजें, ठीक है। अब आपको हिसाब यहां पे ये लगाना है कि किस कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशन से ये दोनों बराबर होंगे। एक कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है भाई साहब आपकी एसएसएस, जहां पे तीनों साइड के बराबर, यहां पे दो साइड और एक एंगल, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर आते हैं अपन एसएएस पे, ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गया भाई साहब। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर आरएचएस भी तो हो सकता है, नहीं भाई साहब आरएचएस जाने की जरूरत नहीं है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स पीपल, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व। अगर आप ऑब्जर्विंग पावर को अपना बढ़ाते हैं, यू विल ऑटोमेटिकली गेट टेकन केयर ऑफ दिस। और अगर आप बोल ही नहीं पा रहे हैं कि भाई साहब क्या क्या बराबर है, देन आपका ऑब्जर्विंग पावर जीरो है भाई साहब, या तो आपका जो ऑब्जर्विंग पावर है वो कहीं और पे एनग्रॉस्ड है। तो मेरे डांटने से ये चीज ठीक नहीं होगी, मैं डांट फटकार लगाऊंगा या चिल्लाऊंगा या कोई और चिल्लाएगा, इससे ये चीज करेक्ट नहीं होने वाली। आपका ऑब्जर्विंग पावर अगर भाई साहब आप अगर नहीं फोकस्ड हैं वो प्रॉब्लम है, और अगर आप नहीं फोकस्ड है तो बेसिकली फोकस है कहाँ, इस चीज को आपको खुद ढूंढ के निकालना है। और आप इतने मैच्योर अभी हो चुके हैं कि आपके फोकस को आप खुद ही ठीक करें। गॉन आर द डेज व्हेन पीपल विल करेक्ट यू, नाउ यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ। आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। मैं बार बार आपसे एक ही चीज पूछे जा रहा हूँ, क्या कॉमन है क्या कॉमन है। देखो ना यार, कितना ही सिंपल सवाल है, कितना ही सिंपल सवाल है, पूरे सवाल पे जाओ भी मत। मैं आपको ये दो ट्राइंगल्स में क्या क्या कॉमन है यही पूछ रहा हूँ, और क्या ही पूछ रहा हूँ, मतलब दिस इज ऑलरेडी गिवन, ऑल यू हैव टू डू इज ऑब्जर्व एंड राइट इट डाउन। और इससे सिंपल क्या हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज पीपल हैव थिंग्स इन प्लेस, ठीक है, ओके। तो आपका एडी और एडी भाई साहब बराबर हो गया, बीडी और सीडी भाई साहब आपका बराबर हो गया, एंगल एडीबी और एडीसी आपका बराबर हो गया, आईडीबी और भाई साहब एडीसी बराबर हो गया। तो आपका रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका एसएएस। एसएएस का रीजन अगर होता है तो एबी और एसी आपका क्या हो जाएगा, AB विल बी इक्वल टू AC। आर वी क्लियर, AB और AC आपका भाई साहब बराबर हो गया, ठीक है। सो AB और AC अगर आपका बराबर हो जाता है तो दिस इज बेसिकली एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। जीवन में भाई साहब हिसाब किताब करना चालू कर दो, आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मतलब मैं सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको आपके ये पढ़ाई जो आप कर रहे हो, आप कितना घंटा अपना टाइम दे रहे हो, आपके लिए पढ़ाई लिखाई वैसी होगी ना भाई साहब, कोई होमवर्क दिया है उसको लिख रहे हैं, वो घर वाले भी सोच रहे हैं भाई साहब वो लिखाई पढ़ाई का काम चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपको भी मालूम है नीट कुछ पढ़ाई नहीं है। वो ये जर्नल्स लिखना, इसको तो मैं पढ़ाई में गिनता भी नहीं हूँ, है ही नहीं ये पढ़ाई का इसको। ये जो फोकट के मार्क्स हैं इसके लिए जो तैयारी आप करते हैं, ये मेरे लिए पढ़ाई नहीं है, बाकी किसी के लिए होगी तो होगी, ठीक है। आपके लिए आपका पढ़ाई नीट होता है जब आप एक्चुअली में बुक को खोलते हैं और उसमें से सवाल लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टडीज़। और आप ही बताइए कितने ही लोग आपकी स्टेट बोर्ड की बुक हो जाए या NCERT की बुक खोलकर एक्चुअली में सवाल लगा रहे हैं। यह आपका हिसाब किताब है। आप रोज़ ना एक अपना खुद का टेबल बना लो, एक टेबल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। टाइम टेबल बनाने की बात भाड़ में गया, मेरे को ना टाइम टेबल जमता नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि टाइम टेबल टाइम देखकर आप पढ़ सकते हो। लेकिन आप एक देखो कि आप कितने सवाल आपने मैथ्स में किए या कितने सवाल आपने साइंस में किए। 2 से 4 करो भाई साहब, 4 से 6 करो। आप लोग करते क्या हो कि अगर अच्छा कितने घंटे में पढ़ रहा हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा, नीट पढ़ाई एक भी सवाल नहीं किया है आपने। मेरे लिए वो पढ़ाई ज़ीरो है, मेरे लिए वो पढ़ाई ज़ीरो है। आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एब्सोल्यूट ज़ीरो है। अगर आप भाई साहब 1.5-2 घंटा बुक लेकर सामने बैठे हुए पन्ने पलट रहे हो, पढ़ रहे हो, मेरे लिए वो पूरा ज़ीरो है, क्योंकि आपके पढ़ाई का कुछ भी अप्लाई ही नहीं हुआ है। आपने SAS पढ़ा है, RHS पढ़ा है, SSS पढ़ा है। आप जब उसको सवालों में अप्लाई कर रहे हो देन यू आर बेसिकली एंगेजिंग योर ब्रेन, वरना पढ़ने से फ़ायदा क्या है आप अगर उस चीज़ को अप्लाई ना कर पाओ। और अभी आपका जो NEP के तहत है, NEP बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही चेंज आया है। आपका एप्लीकेशन देखा जाएगा। नोबडी केयर्स अबाउट व्हाट नॉलेज यू पोजेस, but everybody cares about how are you applying that knowledge, whether it is maths or whether it is science or whether it is any other subject.
आपका ये नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपके पढ़ाई का सिर्फ एक पैरामीटर है, बुक खोलिए, सवाल लगाइए। सवाल भाई साहब अगर आपने 1 घंटे में 4 भी सवाल लगाए ना तो बढ़िया है, नॉट बैड टू स्टार्ट विथ। और अगर भाई साहब 1 घंटा आप बैठे रहे ऐसे पढ़े जा रहे थियरी, मैं बोलता हूँ वो ज़ीरो पढ़ाइए, ज़ीरो पढ़ाइए। 1 घंटे में 4 सवाल भी लगाया ना तुमने, गलत हुआ या सही वो बाद में देखेंगे, लेकिन तुमने अगर सवाल लगाया है ना तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत ज़्यादा। यू विल नोटिस दिस चेंज एंड द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट डू दिस, इसीलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आप ही बताइए कितनी बार आपने एससीईआरटी के बुक एक्चुअली में खोले होंगे, इस चैप्टर से सवाल लगाने की कोशिश की होगी, या एनसीईआरटी की बुक एक्चुअली में खोली होगी और सवाल लगाने की कोशिश की होगी? लेट मी नो, आप ऑनेस्टली बताइए, किसी ने भी यहाँ पे ट्राई किया है इस चैप्टर में से खोलकर सवाल लगाने की? चलिए, नॉट बैड, एक जन। बाकी के लोग क्या मतलब अभी क्या होगा, ये 1 हफ्ता चलेगा, 1 हफ्ते बाद मैं एक टेस्ट दूंगा आपके लिए, क्या हो रहा है भाई साहब, देन यू विल बी इन अ टॉप्सी टर्वी राइड, रोलर कोस्टर हो जाएगा भाई साहब आपके लिए, क्योंकि आप पैरेलली चल ही नहीं रहे हैं मेरे साथ। यहाँ पे आते हैं, मैंने समझाया, पता नहीं इधर कितना गया कितना नहीं, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि आप उसको सवाल नहीं लगा रहे। और अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको रेगुलरली होमवर्क दूँ, मैंने होमवर्क शीट दिया, वो भी आधे लोग नहीं करते हैं। मैंने सारी तकरीबें करके देख ली है, आप अपने से तो कीजिए ना भाई साहब। आपको बुक्स दी गई हैं, उसका एक पैसा आता है भाई साहब। आप इंडिया में रहते हैं जहाँ पे आपको नई बुक्स मिलती हैं हर साल पढ़ने के लिए। आप अमेरिका में जाएंगे ना, आपको स्कूल की फ़ीस नहीं भरनी रहती है, लेकिन उसके साथ एक और सिस्टम है, मतलब जो बैच गया है वो अपना बुक्स छोड़ के जाएगा, उस बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। दे आर सेविंग ऑन फॉरेस्ट, पेपर कटिंग उनको नहीं चाहिए, मतलब ट्री कटिंग नहीं चाहिए जिससे पेपर बनता है, विच मेक सेंस। आप ऐसे साल दर साल ऐसा ही पास ऑन होता है वो बुक्स, कोई किसी को भी नई बुक पढ़ने को नहीं मिलता है। ऑल दीज आर बेसिक। आपके भाई साहब नई बुक्स आते हैं, क्या अचार डालते हैं आप उसका, कितने सवाल लगा लेते हैं आप उससे, एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, ऑल ऑफ इट इज जस्ट गोइंग रद्दी वैल्यू के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि आपने उससे कुछ भी एक्वायर नहीं किया है, वो वैसे का वैसे ही रह गया है। आपको लगता है भाई साहब स्कूल जाकर और यहाँ आकर आपका कुछ पढ़ाई में विकास होगा, तो द आंसर इज़ नो, क्योंकि आपका एप्लीकेशन पार्ट ज़ीरो है। और इस चीज़ को मैं डांट फटकार के आपको नहीं समझा सकता, उस उम्र के आप नहीं रहे। इस चीज़ को प्लीज़ रीऑर्गेनाइज कीजिए, रीफॉर्मेट मारिए आपकी स्टडीज़ में, तभी जाकर को आपको रिजल्ट मिलेगा। रीफॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा भाई साहब। सिंपल बोल रहा हूँ, 1 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, आपके ऊपर है, ठीक है। आपने सवाल कितने लगाए हैं उसका ट्रैक रखो, मारवाड़ियों की तरह हिसाब रखो भाई साहब, आप आगे निकलोगे एज अ स्टूडेंट। वो यही एक हिसाब किताब उनको आगे लेकर जा रहा है फाइनेंशियली। आपको भी अपना हिसाब किताब एज अ स्टूडेंट आपको आगे लेकर जाएगा। हिसाब किताब करो भाई साहब, आज मैंने कितने ही सवाल लगा लिए, किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल लगा लिए, ये हिसाब किताब करो भाई साहब। एक कितना घंटा पढ़ा उससे कुछ नहीं होने वाला, नथिंग यू आर गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट। प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक्स खोलिए, एससीईआरटी काफ़ी मसाला है, रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं रेफरेंस, अरे भाई साहब एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, बहुत बड़ी बात है। एससीईआरटी कर लो, तुम्हारे लेवल पे बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लेवल के 11-12 में भी आप किसी भी बड़े लेक्चरर या प्रोफेसर का अगर लेक्चर देखोगे, वो दे विल ऑलवेज इंसिस्ट फॉर कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स के लिए भी एनसीईआरटी ही पढ़ो। ये मैं नहीं बोलता, ये वो लोग खुद ही बोलते हैं। किसी भी बड़े लेक्चरर का यूट्यूब वीडियो देख लो भाई साहब, दे विल इंसिस्ट दैट प्लीज डू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो माल मसाला है वो काफ़ी है, और एससीईआरटी एनसीईआरटी का ही कॉपी है। प्लीज़ उसको कीजिए, वो ऐसे ही नहीं दिए हुए। हर आपका भाई साहब हर मैथ्स के चैप्टर में नहीं करके 4 या 5 एक्सरसाइजेज हैं। उन 4 या 5 एक्सरसाइजेज में कम से कम 10 या 15 सवाल रहेंगे, प्रॉब्लम सेट रहेगा। कितने लोग उसको डिलीजेंटली करते हैं बताइए। मैं बोलता हूँ ना, आप अगर पूरी बुक को कर लेंगे ना, आपको 95% से कोई नहीं नीचे ला सकता, लिख के देता हूँ मैं ये, लेकिन नहीं करेंगे। आप एनसीईआरटी भाई साहब चार्ट डालो, कुछ नहीं होने वाला, मतलब आपका हो गया, समझ लीजिए 95% आप लाने ही वाले हो। मैं आपको यहाँ का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बहुत ही बदमाश बच्चा था, उसका नाम था केविन पटेल। बदमाश मतलब काफ़ी शरारती, 10th में था वो, मेरे पास 9 से था। 9th में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, सुषमा पाटिल में ही पढ़ता था, ठीक है। शैतान मतलब बहुत ही शैतानी था उसका, ठीक है। मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता था, लेकिन मुझे मालूम है वो पढ़ता लिखता नहीं था। लेकिन उसकी एक आदत अच्छी थी, मैं भाई साहब हर एक सवाल यहाँ पे कराता था और वो ना नोट करते जाता था।
उसकी जब मेरे पास वो पूरा साल पढ़ चुका था तो उसके 2-3 नोटबुक्स हो गए थे, और ये नोटबुक्स ऑलमोस्ट गाइड की तरह थे। सारे सवाल बुक के सारे सवाल उसमें थे। तो यहाँ पे मैं करता था, वो खुद भी करता था, और ये सारे सवाल थे। वो सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे वो ऐसे पन्ने पलट के गया, किया भी नहीं कुछ उसने, बहुत ही आलसी राम था। उसका 95% आया। दूर दूर तक उसको भी मतलब भरोसा नहीं होता भाई मेरे को कितना आ गया, ऐसे कैसे आ गया। लेकिन ये हकीकत है कि भाई साहब अगर आप सवाल लगाओगे करोगे तो ही इंप्रूवमेंट होगा। मेरे यहाँ पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मेरे क्या भाई साहब, कोई तुर्रम खान कोई भी आकर आपको पढ़ाएगा, कुछ नहीं होने वाला अनटिल अनलेस आप सवाल लगाओ। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव ऑफ। ये आपको करना पड़ेगा, और ये गैप आप ही कवर कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको नहीं करके 100 सवाल हर चैप्टर में करा दूंगा। आपका टेक अवे तभी होगा भाई साहब जब आप एक्चुअली में उन सवालों को खुद से लगाएं। और ये हिसाब किताब नहीं हो रहा भाई, जिसके वजह से वही रोज़ निपटारा कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या कंडीशन। कुछ लोग बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। वही मैं आपको दूंगा वर्कशीट, कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं, वही कहानी चलती रहेगी रिपीटेडली। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। प्लीज़ स्टार्ट दिस चेंज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, 4 सवाल 5 सवाल, आज 4 किए तो कल 6 करो, आज 6 किए तो कल 10 करो। ऐसा जितना सवाल करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स अपने आप सही हो जाएंगे, अपने आप। वरना वो घर वालों को डैश बना रहे हो तुम, सीधा के साथ तुम बुक खोल के घर वालों को डैश बना रहे हो, और कुछ नहीं, सिंपल। और इसका खामियाजा तुम ही भरोगे। ओके, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच द ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड मतलब समझ में आता है, देखो वर्टेक्स से जब आप ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो इसको अपन बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है। वर्टेक्स से जब आप ऑपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। मैं ग्रेविटी का एक चैप्टर करा रहा था, शायद ग्रेविटेशन नहीं, तुम लोग का चैप्टर मैंने बीच में कराया था। मैं कुछ सवाल करा रहा था तो आप बोल रही थी, इसका मतलब आपने वो सवाल किया था उस चैप्टर से, मुझे यहाँ तक याद है साइंस का। सो यू विल बेनिफिट इट फ्रॉम दिस। शायद एक चैप्टर आपने किया होगा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं सवाल करा रहा था तो शी वॉज आंसरिंग, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने ट्राई किया है, तब जाकर मैप होगा, वरना मैप नहीं हो पाएगा भाई साहब। आपके मार्क्स तभी दिखेंगे, मार्क्स तो छोड़ दो, आपको भाई साहब पढ़ाई का ही लिंक नहीं बैठ रहा है आपका, इसीलिए कभी रिजल्ट नहीं आएगा। पढ़ाई का लिंक तभी बैठेगा जब आप सवालों को लगाएंगे, सवालों को भाई साहब कम से कम रोज 4 से 5 सवाल और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए आज अगर आपने बैठकर 5 सवाल खुद से किए होंगे, कल आप अपने आप ही वो 10 करेंगे, 10 से 15, 15 से 20, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड दैट्स योर एक्चुअल रीजन और वुड बी योर एक्चुअल रीजन ऑफ डेवलपमेंट, नथिंग एल्स। प्लीज टेक माई वर्ड्स, आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, यही एक फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। किसी तुर्रम खान कोचिंग क्लास में जाकर भी कुछ नहीं होने वाला, किसी तुर्रम खान स्कूल में जाकर भी कुछ नहीं होने वाला, until unless there is an effort put from your end in the right direction। एफर्ट तो सब मारते हैं। अभी किसी के भी पेरेंट को बुला के पूछूंगा तो बोलेंगे अरे वो तो रात बजे तक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है और क्या पढ़ता है, रिजल्ट क्यों नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन है। रात के 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ता है, अरे क्या उसके बाद क्या, तो रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। इसका मतलब पढ़ाई का जो टेक्निक है वही गलत है आपका। आपने एक भी सवाल लगाया नहीं है, पढ़ के आप क्या कर लोगे। सवालों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ABC is an isosceles triangle in which altitudes क्या है भाई साहब आपका BE and CF are drawn to 2 sides AC and AB respectively, show that the altitudes are equal। मतलब आपको यहाँ पे दिखाना है CF और BE इक्वल है। कौन से 2 ट्राइंगल्स ले लोगे भाई साहब, बताओ जल्दी बताओ। ABC in isosceles triangle, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ABC क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी एन एंड, तो ये आपका ऑल्टीट्यूड्स है, ठीक है। ABC ऑल्टीट्यूड, अभी देखो यहाँ पे दिया ही हुआ है AC और AB क्या है भाई साहब आपका इक्वल है, ठीक है। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स ले लोगे भाई साहब, इन ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल्स ABE। सीक्वेंस क्या लूं मैं बताओ दूसरे वाले ट्राइंगल का, AFC मारूंगा, ACF। सीक्वेंस भाई साहब संभालिए,
आप अगर कॉन्ग्रुएंसी में सीक्वेंस नहीं संभाल रहे हैं, आप सिमिलैरिटी में तो पूरा ऐसा लोटपोट हो जाएंगे भाई साहब, वहां तो और ज्यादा सीक्वेंस स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में ये दो प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल्स की, आपकी सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, ओके, ए बी ई अगर आपने लिया हुआ है तो दूसरा वाला ट्रायंगल क्या लेंगे, ए सी एफ। ठीक है, ए सी एफ। ओके, बताइए क्या क्या बराबर हो जाएगा, बताइए क्या क्या बराबर हो जाएगा यहां पे, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी दीज आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है। और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, ए बी, तो आपका भाई साहब ए बी और ए सी बराबर, और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, 90 डिग्री भाई साहब। तो एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ए एफ सी। ठीक है, क्लियर है। और बोलो भाई साहब क्या बराबर, अरे वो तो प्रूव करना है चाचू, वो हाँ एफ ए नहीं दिया हुआ है भाई साहब, देख रहे हो तुम लोग का ऑब्जर्विंग पावर मैं देख रहा हूं एकदम सो वीक। अरे भाई साहब ये वाला एंगल ए दोनों में है ना, कॉमन एंगल हो जाएगा ये, यहां पे भी एंगल ए है और यहां पे भी एंगल ए, इजंट इट अ कॉमन एंगल। तो बी ए ई लिखो या सी ए एफ लिखो, इट्स सेम। ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं, आपका ऑब्जर्विंग पावर बिल्कुल वीक है, आपके सामने सारी चीजें हैं, कॉन्ग्रुएंसी में कुछ भी आपको अलग से नहीं करना पड़ता है, ट्राइंगल आपके सामने दिया रहता है, ट्राइंगल्स आपके सामने दिए रहते हैं, सिर्फ मैच करना पड़ता है क्या किससे बराबर है। ठीक है, और ये आपका वीक इसलिए क्योंकि आपका ऑब्जर्विंग पावर वीक है भाई साहब, आप ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे हैं इसको। ठीक है, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, बी ए ई, दिस विल बी बी ए ई इज इक्वल टू भाई साहब क्या हो जाएगा, सी ए एफ।